Hello pupil teachers, welcome back to the channel. Today we are going to dive into one of the most important topics in teaching, that is the theories of teaching. Whether you are a student teacher, an experienced educator, or just curious, this video will give you a clear understanding of the major teaching theories and how they shape the classroom. Let us start with the basics first. What exactly are teaching theories? Simply, they are the frameworks that guide how teachers deliver content, how teachers manage the classrooms, and support student learning. Just like a coach has a playbook, teachers use theories to shape how they teach and how students learn. Theories basically show us the path to move forward in a teaching learning process. So today we are going to discuss about these important theories for teaching. First, have a look at the definitions of theory. Theory is generally said to be a set of relationships between facts and ordering of them in some meaningful way. जिस तरीके से हमें कोई स्टेप्स अगर मिल जाएं तो हम उस चीज को आराम से फॉलो कर सकते हैं. इफ यू नो द प्रोसीजर, इफ वी नो द स्टेप्स, तो हम आराम से मैनेज कर लेंगे. वी कैन मेक द पाथ फॉर अस. सेम थ्योरीज do for the teaching learning process. They try to show us the relationship, they try to provide us some guides, to provide us some steps in a sequenced manner so that we can use those theories in a meaningful way for our teaching. According to Douglas and others, theory specifies the relationship between events for the purpose of explaining the occurrence of the events and predicting future events. क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या करना चाहिए. अगर हम ये मेथडोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं. अगर हम ये स्ट्रैटेजी यूज करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. तो एक तरीके से जो थ्योरीज हैं, इट शो कि हमें कैसे काम करना है, हाउ वी कैन डिजाइन आवर एक्टिविटीज, हाउ वी कैन सेट द करिकुलम, राइट करिकुलम फॉर द स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन चूज द इवैल्यूएशन टूल्स फॉर आवर स्टूडेंट्स. सो ये सारी चीजें थ्योरीज कहीं ना कहीं हमें बताती हैं, ताकि जब हम टीचिंग पर आगे बढ़े या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक एक गाइड हो, एक मैनुअल हो जो हमें सपोर्ट करता रहे. In theories, we are going to talk about basically the three major factors, that are how do teachers behave in a classroom, in a academic setting, किस तरीके का behavior उन्हें करना चाहिए academically, किस तरीके की content knowledge उनके पास होने चाहिए, why do they behave as they do, वो ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज उनके पास एक मैनुअल है, उनके पास एक गाइड है जिसके बेसिस पे वो काम कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे वो सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं. दे हैव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विद देम फॉर दैट. देन व्हाट आर द इफेक्ट्स, इसके लिए हम कह सकते हैं इस इवैल्यूएशन एक तरीके का, कि जब टीचर पढ़ाएगा या टीचर पर्टिकुलर वे में क्लास के अंदर बिहेव करेगा तो उसके क्या इफेक्ट्स या क्या फीडबैक उसको मिलेगा. पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कुछ कुछ कहीं कहीं शॉर्टकमिंग्स रह जाएंगी तो वो कैसे दूर करेगा या बच्चों के साथ कैसे डीलिंग करेगा. If we talk about the nature of theory of teaching, so जो theories हैं basically it directly links us with the psychology of instruction. कौन सी instruction कैसे देनी है, एक बार में कितनी instruction बच्चे को दी जानी चाहिए, कितनी instruction एक बार में हमारा जो learner है वो ले सकता है on the basis of his or her age or interest. तो वो सारी चीजें करने का काम या हमें बताने का काम theories हमसे कराती हैं. It also explains and describes the behavior of the teacher in classroom. हमें कैसे behave करना है, हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ऐसे हमें अपने आप को मेंटेन करना है, ऐसे हमें अपने कंटेंट को अरेंज करना है, ऐसे हमारी एक्टिविटीज डिजाइन होंगी. सो सारी चीजें जो एक टीचर क्लास के अंदर करता है, जिस तरीके का बिहेवियर वो शो करता है पढ़ाने से लेकर को करिकुलर या कुछ भी और, वो सारी चीजें भी थ्योरीज हमें प्रोवाइड करती हैं. It also prescribes the factors, conditions and strategies for ensuring effective learning. क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करें,
या हमारी टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं? क्या कंडीशंस हैं ऐसी इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट कर सकती हैं? कौन सी स्ट्रैटेजीज ज़्यादा सूटेबल हैं और कौन सी लेस सूटेबल हैं? तो ये सारी चीज़ें भी हमें गाइड करने का काम थ्योरीज करती हैं. It also presents a systematic view of teaching by specifying relationship. किस टॉपिक के साथ क्या रिलेशन है, किस फैक्ट का किस फैक्ट के साथ क्या रिलेशन है, अगर एक प्रॉब्लम आई तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे रिजॉल्व करना है. सो ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिक एक सीक्वेंस वे में हमें मिलती हैं टीचिंग के अंदर विद द हेल्प ऑफ दीज थ्योरीज. इट ऑल्सो इक्विप्स अ टीचर विद प्रॉपर theoretical background and training. जैसे हमने बात की कि थ्योरीज एक तरीके का मैनुअल है, एक गाइड है. सो वो सारी चीजें थ्योरेटिकली हमें देती है कि अब हमने अच्छा ये कर लिया, अब हमें ये करना है, टीचर का ये रोल होगा, लर्नर का ये रोल होगा, एक्टिविटीज इस तरीके की होंगी, इवैल्यूएशन ऐसे होगा. सो एवरीथिंग विल बी देयर इन इन थ्योरेटिकल फॉर्म. और वो प्रॉपर ट्रेनिंग भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें थ्योरीज से मिलती रहती है. It also implements a relationship between the teacher and the taught. अगर हम क्लास में जा रहे हैं and I'm not very well prepared for our टीचिंग कंटेंट, तो होगा क्या? टाइम वेस्टेज है, एफर्ट्स वेस्टेज है, बहुत सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं क्योटिक हो जाएंगी. उस टाइम पर जो थ्योरीज हैं वो हमें एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि इनके बेसिस पे हमारी सारी प्लानिंग जो है वो पहले ही हो जाती है, सारी चीजें अरेंज्ड होती हैं. लास्ट मोमेंट पे हमें सोचना नहीं पड़ता कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग. वहां पर हम जो कंफ्यूजन है वहां से बाहर निकलते हैं और हम अपनी एक गाइडेड वे में आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ द नीड इज बेसिकली विदाउट थ्योरीज वी कैन से एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेल्दी वे में आगे नहीं बढ़ सकता. उस केस में हमें थ्योरीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग एक पैरेलल प्रोसेस है. इफ देयर विल बी टीचिंग देयर विल बी लर्निंग एज वेल. दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना के रखना, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना, वो थ्योरीज बहुत अच्छे से कर सकती हैं, इसलिए भी रिक्वायर देम. आइडेंटिफाइज कॉमन फैक्टर्स चाहे टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे लर्निंग से रिलेटेड हो, इवैल्यूएशन के कुछ फैक्टर्स हो, या एक्टिविटी से रिलेटेड कोई फैक्टर हो, मेथडोलॉजी हो, हर चीज के जो कॉमन फैक्टर्स है ना वो हमें आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करती है. एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कितना मैच हो रहा है, कहाँ कोरिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारे कॉमन फैक्टर्स भी विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज वी कैन आइडेंटिफाई. It also gives knowledge about the assumption of teaching activities. As a teacher, we assume कि जो मैं पढ़ाऊंगी वो सबको समझ में आएगा, बच्चों को समझ में आएगा, या मेरे लर्नर को समझ में आएगा. मैं इजी वे में बता रही हूँ, मेरे एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, मेरी एक्टिविटीज अच्छी हैं. ये सारी assumptions बनाने का या ये एज्यूम करने का काम भी, या उसकी नॉलेज भी हम कह सकते हैं, ये हमें थ्योरीज प्रोवाइड करती हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग. जैसे कब क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितनी इंस्ट्रक्शंस एक बारी में दी जानी चाहिए. वो सारे जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमें एक सपोर्ट मिलता है वो भी थ्योरीज प्रोवाइड करती हैं. It also helps to develop instructional design. Instructions कैसे देनी है, on the basis of objectives, on the basis of students, on the basis of individual differences. तो कहाँ कब क्या चीज हमें इनकॉर्पोरेट करनी है और कब कहाँ किस चीज को हमें हटा देना है, उसके लिए भी हमें थ्योरीज की जरूरत है. It also provides scientific basis for planning, organizing and evaluating teaching. सारी चीजें scientific हैं, logical हैं, relevant manner में है. ये करना है तो इसका ये आउटपुट मिलेगा, इसे ऐसे किया जाएगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट ऐसा रहेगा. तो ये सारी चीजें भी थ्योरीज हमें प्रोवाइड करती हैं, इसलिए भी हमें थ्योरीज की बहुत डायर नीड है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू सॉल्व क्लासरूम टीचिंग प्रॉब्लम्स. जो भी टीचिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हमें लगता है कि हाँ इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्टिविटीज हो, करिकुलम हो, कुछ भी इश्यूज हो, वो आराम से हम विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज रिमूव कर सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक about the different types of teaching theories. Majorly, there are three types of teaching theories: formal theories of teaching, descriptive theories of teaching, and normative theories of teaching. और हर theory of teaching के अंदर further अलग अलग parameters हैं, अलग अलग theories हैं जो हमें
टाइम ऑन टाइम गाइड करती रहती हैं कि हमें कैसे टीचिंग को करना है। लेकिन इनकी बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, जहां पर आपको डिटेल में इन थ्योरीज के बारे में जानने को मिलेगा। More important than the curriculum is the question of the methods of teaching and the spirit in which teaching is given. So that is what theories of teaching are doing with us. Basically वो हमें बता रही हैं कि हमें कैसे काम करना है, कैसे methodology को adopt करना है। करिकुलम हम सबके पास है, बट अगर थ्योरीज की नॉलेज सबके पास होगी, so definitely teaching learning process would be a different thing. So keep teaching and keep learning. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe the video if you find the information useful.